Very good morning to everyone and welcome to the Uthan session today. So today we are in the last session of the topic that we started, which was how the future is linked with our past and current actions. And today is the Q&A session. So we will first have the summary and then the question and answer. Sangeeta Didi, welcome. She's joined us. Didi, Om Shanti, and over to you. Om Shanti. Good morning. So, very good blessings to all of you. And as usual, so all your present is linked with the future. So in present, today also you will be very powerful, इशारे से समझने वाले. जो अभी इशारे से समझेगा प्रेजेंट में, उसका भविष्य भी क्या है, बाकी सब उनके इशारों से चलेंगे. So all of those who can understand the signals, we always like such people who just understand your ishara and do it. आप सभी भी कौन हो इशारे से समझने वाले. Yeah, wonderful. जो इशारे से समझ जाएंगे वो जल्दी से जल्दी एंजल बन जाएंगे. So today, this whole week, we had done very good, powerful understanding about the present, how is it linked with the past, and how is it linked with the future. And I'm sure since it is so powerful, anything which is a very powerful, not only so much it is linked with yesterday or a month before or a year before, but it is linked with, what have we understood? Our present is linked with just not a year before or so, but it is linked with how long is the duration of our present, the link. Births together. All of us agree to it. And that's the reason we many times we say कि हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग तो ऐसे हैं, ना मेरे में ना मेरे हस्बैंड में ऐसे संस्कार है, मेरे पार्टनर में ऐसे संस्कार है नहीं, बट पता नहीं ये बच्चे ऐसे क्यों. या मेनी टाइम्स वी क्वेश्चन फॉर आवरसेल्फ आल्सो, पता नहीं सारा जीवन मुझे कभी याद नहीं आता है मैंने ऐसा कभी कुछ किया, पर पता नहीं क्यों ऐसे होता है. दिस पता नहीं, ये जो क्वेश्चन है क्यों होता है, ये जो क्वेश्चन है कब तक होता रहेगा, ये जो क्वेश्चन है, this all is nothing but the connection of a present with the past. And therefore, if the present is connected with the past, means now every minute what we are doing will become past, right? So 1 minute before 10 o'clock was the past for this minute. So every minute is going to the past. So therefore, our every minute is connected to what is going to happen also. So our present is becoming past and our future is becoming the present. And therefore, we are very much connected to the future because we are very much connected to the past also. तो ये जीवन के लॉस को समझने से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. And therefore, just because it is connected, we always meet people in our lifetimes. Those people only whom we had been connected some or the other way in the past. ऐसे ही कोई कुछ नहीं कर लेता है, मतलब जिनके साथ हमारा अच्छा कार्मिक अकाउंट है, अच्छा पास्ट है, इट कुड बी गुड और इट कुड बी बैड, उनके साथ हमारा कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होगा ही. आप एक मकान खरीदने जाते हैं and everything is fine, you feel everything, I'll just pay the money, I'll get the possession, यही सोचते हैं.
और जब लेने जाते हैं दे भी देते बहुत कुछ अमाउंट, और फिर पता चलता है ये बिल्डर ऐसे निकला, इसने ऐसे ऐसे किया। तो वो क्यों हुआ? तो why that person had to come in my lifetime? हम कहते मैंने कभी इसके साथ कोई बुरा किया ही नहीं, ये क्यों ऐसे निकल आया? इट्स नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। समवेयर वो कनेक्शन था, and therefore he will come in the form of such person who can take something from me because I taken something from him. And depending if I had invested much of his time in the past, much of his money in the past, मैंने उसका समय भी वेस्ट किया था, मनी भी वेस्ट किया था, उसको बीमारी भी दी थी, somewhere because of all those interactions, that soul in the present would come with all these accounts in my life. And therefore हम कहते हैं कि जब से ये बहू आई ना, तब से बहुत प्रॉब्लम हो गई घर। सो इट इज नॉट कि उसके आने से कुछ हुआ था, लेकिन मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन था, एंड देयरफॉर जैसे ही वो आएगी, मेरा वो दैट सोल वुड बी द वन टू मेक क्रिएट प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। उसकी प्रेजेंस, उसने कुछ किया भी नहीं है, उसके आते ही पता नहीं बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि there are so many rituals in the life, especially in the marriage and any such event, and the whole rituals are meant that whatever could be the relationship between the souls earlier of the new one and the old ones, let उसकी शांति कराना है। इसीलिए वो सब बहुत सारे रिचुअल्स उसमें होते हैं, शांति हो जाए, शांति कराते हैं। और फिर इसलिए वो स्टार्स देखते हैं, स्टार्स देखने के, और अगर कोई मांगलिक है ये है तो कहते बहुत शांति होनी चाहिए, शांति कराते, क्योंकि वो व्यक्ति लाइफ में आएगा तो पता नहीं कितनी अशांति होगी। ऐसे कैसे कौन अशांति कर सकता है? somewhere it is connected with the past, therefore the soul has to come in any form in my life, in it could be any relationship, तो उसका presence it's very powerful. So therefore the presence of that soul, वो बच्चा जन्मा घर में, इतना तब से मेरा बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है, तब से मेरी प्रमोशन होती जा रही। So the soul, any soul which has come with a very powerful plus or minus accounting, it has a very plus baggage with me, that soul has in the past. So the moment they will come, उसका क्योंकि प्लस बैगेज, मेरा उसके साथ बहुत प्लस बैगेज था, मैंने दिया ही दिया था उसको, बहुत कुछ दिया था। तो जैसे ही अब वो आएगी मुझे मेरे से लेने के लिए, मैंने उसको दिया, अब उसको भी मिलना चाहिए, उसको भी मुझे देना चाहिए। I had given a lot of, could be money, I had done a lot of seva as a child to that parent, तो मैंने किया बहुत था। Am I eligible to get back? Am I eligible? So now the soul, when he will, that person, the moment they will come in my contact, they would just like to serve me. उनको अच्छा लगता है, वो बहुत पॉजिटिव है आपके साथ। या इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चे आते ही घर में पता नहीं इतना प्रोग्रेस होने लगा, because whatever it has given you, he has taken from you, he is going to give you back. His presence will be such, will automatically make you many things fortunate.
तो इसलिए कभी भी दिया हुआ, as we discussed last time, with these three things we have to practice in life. One was forgiveness, if you recall, and the second was giving nature. I just go on giving, giving, and giving. And the third is I just forgiveness. So if these three things are practiced always in our life, तो कभी भी कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ प्रॉब्लम. You will always, and meditation. And third is, as I told, forgiveness, giving, and if at all it is still very stronger, कि आपने इतना पैसा दे दिया, इतना कुछ मतलब लॉस हो गया, पर पता नहीं फिर भी वो कमी नहीं हो रहा है. So the best way is meditation. The meditation is the only powerful aspect where without any you doing anything, it will get covered. तो एक है तो ये वाला पावर. इसलिए अपने मन से, there are only two things very powerful in the life, and that is, one is you, your mind, and the other one is the supreme energy. इन दोनों से ज्यादा जीवन में और कोई पावरफुल है नहीं. जो ये समझ लेता है उसको बहुत सारी इजी, इट बिकम्स वेरी इजी टू बिलीव योरसेल्फ and to go for the solution. तो अपने मन को हमें समझाना, as I told, जितना भी हो सके, कोई कुछ भी गलत करता है, when I understand it is my past, I will just go on internally, deep inside. Forgiveness means I have not been affected by his negative. At the same time, nothing will come out also in my words about that person. वो फ्रेंड मेरे साथ खराब कर रही है, मैं कभी भी किसी भी फ्रेंड को उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगी कि ये पता नहीं कौन सा इतना क्या ये मेरे को जेलस हो रही है, why she is doing the leg pulling to about me. जिसका भी मुझे नेगेटिव दिखता है, एक ही है, सॉरी, and go on giving blessings to that soul. तुम्हारा बहुत अच्छा हो. If you just see, even if a person is very jealous to you, he is jealous because you have got something which he wanted. तो अब उसको वो वैकेंसी है जो आपके पास है. Now, people are keeping me in forefront always. That's the reason for her or him to be very jealous. So when I get the seat forefront की, मैं उसको भी बुला लूं, आ जाओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी करो. If I can just make her or him participate in my happiness, उसकी मेरे से वो नेगेटिव वृत्ति डाइल्यूट होती. And then internally also, if I'm not affected, ये तो बहुत रॉन्ग मेरे लिए बोल रही है, ये मेरे लिए बहुत एक्यूज कर रही है. तो इंटरनली भी if I'm not affected, I know because सब कुछ अकाउंटिंग है पास्ट का जो प्रेजेंट में आए. I'll just go on giving blessings. तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, तुमको मेरे से भी ज्यादा प्रमोशन मिले, मेरे से भी ज्यादा तुम्हारा प्रोग्रेस हो. Can we think this? You just have to think it. How many of us are courageous enough to think कि मेरे से भी ज्यादा मिले?
How many of us are very courageous? We have to see. आप जितना ये फील करेंगे उसको तो उतना ही मिलेगा जितना उसका फॉर्च्यून है. इट्स नॉट कि मेरे सोचने से कुछ, लेकिन मेरे तरफ का जो उसकी तरफ से एरो आ रहा है, तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम, मेरे तरफ से एरो जा रहा है, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपको बहुत पावरफुल मिलेगा. तो उसकी तरफ से बद्दुआ आ रही है, मेरे तरफ से दुआ जा रही है, कौन सा एरो बहुत पावरफुल होगा? ये पावरफुल. तो इसलिए उसको ऑटोमेटिक उसका डाउन हो जाए. So now we'll start with the question answer session. Okay. Any question? No questions. I'll ask a question. Hmm. Didi, how can we like help somebody who is struggling to find a connection between their past and current actions? I mean, how should they realize that what they're doing right now will have an impact in the future, maybe? So, somebody who's struggling, how should we make them realize this? See, realization is possible only in three methods. One is wisdom, which we all are doing now. Second is when you are stable, you are able to realize कि मैंने कहाँ गलती की थी, if it is connected with the recent past. And third is time, समय उसको realize करा. तो इसलिए I can just make myself very clear if at all that person is in my contact, is in my connection. So I, by doing whatever best I can, that only help I can do. And of course, the best could be in the form of the actions, and also it could be in the form of wisdom. Maybe I can explore this kind of knowledge to that person so that he will understand. क्योंकि सभी कोई रिसीविंग मोड में भी नहीं होते हैं. जरूरी नहीं कि वो समझ ले. मैं ज्ञान की बातें, वो कहेंगे लेक्चर देना शुरू कर दिया, कभी कभी ऐसे भी हो सकते. तो इसलिए हम ट्राई जरूर करें, क्योंकि विजडम से ही रियलाइजेशन होगी, या शांति से कोई बैठेगा तो उसको समझ में आएगा, अगर वो रिसेंट पास्ट कुछ हुआ तो. एंड थर्ड है, कभी जब हमें धोखा मिलता है और फिर भी उस समय विजडम आ जाएगा, तो उस धोखे को भी हम एक स्टेपिंग स्टोन समझ के आगे बढ़ जाए. लेकिन अगर उस धोखे में हम दर्द में चले गए, हम रिग्रेट में चले गए, एक्यूज करने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की ठहराते रहे, आज तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए ऐसा हुआ, तुमने इतना ऐसा ही मुझे बोला इसलिए मुझे ये बीमारी आ गई. क्योंकि अगर वो सिचुएशन आ गई लेकिन विजडम अगर नहीं है, तो शायद वी आर गोइंग टू बी इन द सिचुएशन ऑलवेज, बिकॉज द प्रेजेंट खराब हो गया तो फ्यूचर भी खराब. So the number one realization could be only of wisdom of such kind of classes, where we are made to be convinced about it. And in fact, this kind of workshops y'all can forward so that people would at least understand other. Wisdom is the number one method to make others realize. And second is my positive, my positivity.
if at all I'm in connection with that person. यही दो तरीका है, एंड उसके बावजूद भी कोई नहीं होता है। अब सबके पास अवेलेबल है कि क्लिक करो और ये क्लासेस सुनो, लेकिन फिर भी नहीं कोई सुनेगा, फिर हम क्या कर सकते, क्या कहेंगे? ये भी फॉर्च्यून चाहिए, इसलिए बिना भाग्य सत्संग नहीं मिलता है, कहते हैं। अच्छा, so you all are very fortunate to have such kind of wisdom classes in an official timings. That is the biggest fortune. इस कारण avail every opportunity you get of such kind. तो यही रियलाइजेशन हो सकता, तभी रियलाइजेशन हो, नहीं तो ऑलवेज जैसी परिस्थिति आएगी हम रिलेट करेंगे, क्योंकि तुमने ऐसे कहा था ना, क्योंकि तुमने ऐसे किया था ना। सो दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टू हैव कि वो जस्ट एक ट्रिगर है, वो एक रीजन है, बट मेरा ही कुछ था पास्ट, इसलिए उसने ऐसे किया, और इस कारण वो एक बीमारी बन गई। उसने कुछ नहीं किया, मेरा पास्ट था। This is called realization, when I just make myself responsible for what I am going through. This is called wisdom. Can we see our past? Present is the mirror of your past. So whatever you are in the present, so that is something connected with your past. देखने की जरूरत नहीं होती है, समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर देख भी ले पूरा लाइफ तो कोई देख भी नहीं सकता है, बोर हो जाएगा। लेकिन आई हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि नहीं, ऐसा कुछ किया था जो ऐसा मिला है। आजकल रिग्रेशन थेरेपी चल रही है बहुत सारा, where people are taken into the past. There is a strong, always a very negative, strong relationship between the two people. बहुत ही strong होता है, and फिर उनको थेरेपी कराते हैं। People are resorting to such kind of means. और जब उसमें थेरेपी में पता चलता है, उनको ले जाते हैं पास्ट में, एंड एवरी टाइम ऐसे एपिसोड्स भी आए हुए हैं, सीरियल्स भी हुए, whatever their strong reactions relationship is there, उसका कनेक्शन वो पास्ट का बताते हैं कि पास्ट में कुछ न कुछ ऐसा था उनके साथ, जो एक वो एक अनसेटल्ड हो गया। अनसेटल्ड मतलब एक ने गलती की, दूसरे ने भी गलती की, कभी कभी ज्यादा, फिर उसने गलती की, ऐसे करते करते वो अनरिजॉल्व रहा, एंड देयरफॉर इस प्रेजेंट एपिसोड में आके, पास्ट एपिसोड में अनरिजॉल्व था, प्रेजेंट एपिसोड में आके फिर वो रिजॉल्व। तो इफ एट ऑल अभी दिस इज रिग्रेशन, दिस इज अ प्योर साइंस हो गया, एंड बिकॉज ऑफ विच अब उनका वो जो प्रॉब्लम था उसके प्रति, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, वो वाली फीलिंग चली जाती, तो मतलब स्टॉप हो जाता है, लॉस स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो कर दिया वो तो कर ही दिया ना। लॉस स्टॉप होने से एक राहत मिल जाती है, और नेगेटिव क्रिएशन नहीं होता है, एंड देन दे आर बीन टोल्ड टू डू दिस फॉरगिवनेस थेरेपी। डिवोर्स तक की सिचुएशन थी, एक कपल आए थे, बहुत ही ऑलवेज, और वो जो डिवोर्स का सिचुएशन आता है वो एक दो दिनों का नहीं होता है, कितने सालों का एक्यूमुलेशन होता है। तो इट वाज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड देन दे केम टू अस,
एंड देन वी टोल्ड कि अलग अलग थे, उनको यही बोला कि आप केवल ये प्रैक्टिस करो, मैंने जो भी अभी तक किया आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, और फिर उसको केवल ब्लेसिंग्स दो, डू इट फॉर सम नंबर ऑफ डेज लाइक 21 सच काइंड ऑफ नंबर्स, कुछ समय तक करते रहो, 30 डेज 21 डेज फिर 21 डेज, and within 21 days the husband started feeling sorry for it, और उसने रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए. So depending upon what all, how much powerful I can be, I'll just do these two things: forgiveness, giving blessings. तो इसलिए पास्ट देखना, जो भी मैं हूं मतलब मेरा कनेक्शन है पास्ट से, तो देखने की जरूरत, यही मेरा देखना है. जिसका मुझे आंसर नहीं मिलता है ना, पता नहीं क्यों ऐसे करता है, पता नहीं मैंने क्या गलती किया, ये क्यों ऐसे करता है. सो आई विल सी दिस द पास्ट. बाकी देख भी ले तो आंसर तो यही है, फिर भी आंसर किसी भी वे से एक ही, तीन ही आंसर है: forgiveness, giving and meditation. Yes, any more question? All are full? सब आंसर्स मिल गए सबको? कुछ भी तरह से मुझे कोई रिग्रेट नहीं किसी के साथ, बिकॉज किसी को कुछ पूछना? तो this is, I don't know how far it is true, but this is a story. Now 14-year-old child of the only child in the family, प्रोफेशनल good फैमिली था, बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था. एक ही बेटा, 14 साल की एज में उसको पेट की बीमारी हुई. पहले तो कुछ अच्छे से सॉल्व की ट्राई किया, लोकल लेवल, नेशनल लेवल, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटमेंट कराई, फिर भी ठीक नहीं हुआ. And being the only son and well off the family was, so they put all kinds of effort. यहाँ तक कि अपना मकान बेच के भी उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए सब कुछ किया. 1 year तक चला, and after 1 year, one fine morning, this father was sitting bed, he was almost bedridden, कुछ पता नहीं चला बीमारी का. एंड फादर ने, फादर बाजू में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अचानक उसको होश में आ गया बच्चा, और वो कहता है कि ओके पिताजी, अब मैं चलता हूँ, मुझे आपसे इतना लेना था, मैंने ले लिया, अब आई एम गोइंग. पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है. एंड फिर वो he is very much in a wisdom state of like no trance state. तो बता रहा था कि बात पिछले जन्म की है, हम और आप अच्छे बिजनेस में पार्टनर्स थे, एंड वी यूज्ड टू डू पार्टनरशिप, business in partnership, and every year we used to go to the village. The business were in the city and our families were in the village. So like every year we used to share the profits equally and go back. So as we were going towards the village after sharing the profits, both of us, अच्छा खासा संबंध था. आपके मन में आया, because I was bachelor और आप गृहस्थी थे, आपके मन में आया इतना पैसा लेके करेगा, और बस बहुत
मन में खराबी आई और आपने मेरा कत्ल कर दिया, सारे पैसे ले लिए, वो पैसा और आज तक का इंटरेस्ट मैंने आपसे ले लिया है। नाउ आई एम गोइंग। तो जितने दिन अच्छा, सेइंग दिस ही ब्रीथेड हिज लास्ट, जितने दिन अच्छा था वो 14 साल, तो वो बिजनेस किया था ना, उसमें अच्छे फीलिंग्स तो थे। Therefore that person will come to you in any relationship, और वो बहुत सुख देगा क्योंकि तुमने सुख दिया था 14 जब तक बिजनेस किया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ और वो पूरा पैसा उस सिचुएशन में लग के अब आप कहते हो कि मेरा सब कुछ चला गया। सो नथिंग इज unjustified. This is the crux of learning the lesson. My every present is connected with the past. हर कुछ, यहाँ तक कि हम यहाँ से सब्जी वाले के पास जाते, सब्जी वाला मुझे धोखा देता है, वो भी जस्टिफाइड है। अनजस्टिफाइड कुछ नहीं। एवरीथिंग हैज अ रीजन। ठीक है, सो नो मोर क्वेश्चंस, ऑल आर सॉल्व्ड। तो अब से हमें क्या करना है? What could be the resolution? Today we'll find, bring out a resolution. हर कोई के लिए दिल से blessings, जो forgiveness and blessings. अगर कोई गलत कर रहा है तो forgiveness और then blessings, कि इसके साथ बहुत अच्छा हो। अगर वो आपको गलत कर भी रहा है लेकिन उसका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़े। देखो, मैं बोलूंगी, if every one of us can just on the video and just maybe if you can, आप अपने मन में वैसे मुंह से बोलो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आवाज नहीं आएगी बट यू योरसेल्फ नो व्हाट यू आर स्पीकिंग। जो भी मेरे साथ हुआ उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। जो भी, कोई भी मेरे साथ कुछ भी करता है, मेरे साथ बुरा भी करता है, उसके साथ, क्योंकि उसने मेरे साथ किया, उसके साथ, रिपीट कर रहे हैं, और बुरा हो। किसी ने बोला? एनीवन सेड? किसने कहा और बुरा हो? रुक गई ना, द वर्ड्स हैव स्टॉप्ड। हम सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते कि उसके साथ और बुरा हो। जबकि आपको केवल रिपीट करना था मैं जो बोल रही। यू आर नॉट द responsible, I was, but we just cannot think because we are so pious and pure souls. This is a proof that you all are very pure souls. हम बोल भी नहीं सकते तो फिर हम ऐसे कर कैसे सकेंगे? इसलिए कुछ भी बुरा किया मैंने, मुझे किया था, मैं सॉरी हूं। एंड आप ट्राई करके देखिए, ये प्योर फीलिंग्स का साइंस है। जितना आप इधर फॉरगिव लेते जाएंगे उसकी फीलिंग्स आपके लिए 100% डाइल्यूट होते जाएंगे। आप पैसा, किसी ने, कोई आपको दे नहीं रहा है, हम क्या करते इधर से, नहीं दे रहा है, तुमको भी पता चलना चाहिए। ऐसे करता है, मेरे इतने हार्ड अर्न्ड मनी है, तुम ऐसे करते हो। दिस आर द कर्सेस आई एम गिविंग। क्या करे? बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है, पैसे लेके चला गया मीठा मीठा बोल के,
आपका कलीग के रूप में आया, बाजू में बैठता था, क्या करें? आपको मेरी तरफ से दुआएं। मैं बहुत सॉरी, forgiveness and give, and you will see the results, very powerful result. और जो अभी नहीं आया है, जो चल रहा है उसके लिए तो है, और जो नहीं आया है उसके लिए मेडिटेशन। पॉसिबल? दिस इज कॉल्ड करेजियस एक्ट। गलत के साथ गलत होना बड़ी बात नहीं है, गलत के साथ भी अच्छा होना, बिकॉज ऑफ दिस साइंस, इज कॉल्ड विजडम। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस कर सकते हैं? बॉस के साथ, कलीग के साथ, देर आर मेनी अकाउंट्स वी आर मेकिंग एवरी डे, पता ही नहीं चल रहा है, उसको स्माइल नहीं किया, एक फ्यूचर हमने क्रिएट कर दिया उसको दुख देके, उसका स्माइल का रिस्पॉन्ड नहीं किया मैंने, वन मोर फ्यूचर क्रिएट कर दिया, उसको दुख दिया। These are the simple things we are accumulating. हम दीदी सोचते क्या है, ऐसे ही तो है, उसमें दीदी नहीं ओम शांति। किया। उसमें क्या, कौन सा पाप कर दिया मैंने? These are the little things. बीमारी बीपी जो आता है ना, कैंसर आता है, वो आज नहीं आता है, ऐसे ऐसे आता है। सो लिटिल बद्दुआ, ये सब एक्यूमुलेट हो रहा है। मैंने हेल्प नहीं किया, मेरे पास था, मैंने स्माइल नहीं किया, मैंने इतने से पैसे ले लिए, क्या है, उसको तो बहुत है उसके पास, क्या फर्क पड़ता है, मैंने खा लिया उसका, उसको क्या करना है, होटल में जाए, मैंने खर्चा किया, उसने खर्चा करने दो, वो 1000 रुपए की थाली ना 5000 में चेंज हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल होगा, वो 5000 जब लेने आएगा ना, तो नेवर मेक एनी अकाउंट्स। ओके, क्या करेंगे? नो क्वेश्चन, सो विल डू दैट मेडिटेशन। दिस इज कॉल्ड the meditation where your accounts are clearly solved without you doing any action. कुछ दीदी भी एक क्वेश्चन है। ओम शांति दीदी, एक क्वेश्चन है। कार्मिक अकाउंट्स तो हमारे डेली बनते हैं, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग्स हम बहुत सारे लोगों के टच में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमंस के साथ भी और बाकी एनिमल्स के साथ भी। बट एक चीज है मैम, जैसे लेट्स से कोई चोरी हो जाती है, तो हम हमारे दो व्यूज हो सकते हैं कि हमने लास्ट बर्थ में इसके यहाँ चोरी की थी, इसने इस बार मेरी कर ली या मेरी चीज चुरा ली और हम लोग का कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। तो या तो ये सोच के और बहुत अच्छी वाइब्स और गुड फीलिंग्स के साथ उसको फॉरगिव करके हम बैठे, या फिर हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी माइंड में रख के वहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेंट करें या इस रिपोर्ट इंसिडेंट को रिपोर्ट करें। इसी तरह बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, हर एक के वर्क प्लेस पे भी है कि वो अपने सीनियर को बताए अगर उसको कुछ लगता है, कुछ डिपार्टमेंट में हो रहा है, या वो सिर्फ कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है ये सोच के फॉरगिव करके शांत बैठे। तो ये कंफ्यूजन है, इसमें क्या करें दीदी? क्वेश्चन, इट इज नॉट और, इट इज एंड। मतलब हमको जो कार्यवाही करना है लीगली, वो तो हम करेंगे, सूट केस फाइल करना है, मतलब वॉट एवर, अगर लीगली ऐसा कुछ ज्यादा पुलिस में रिपोर्ट करनी है, एफआईआर करना है, वो हम करेंगे, बट फीलिंग वाइज हम नेगेटिव क्रिएट नहीं कर, इन द सेंस कि मैं कहूंगी इतने खराब हो, तुम ऐसे करते हो, तुमको मिलना चाहिए, तुम बहुत गलत हो, हमने फीलिंग वाइज हम नहीं क्रिएट कर, हम फीलिंग वाइज ये क्रिएट करेंगे, मैंने कुछ किया होगा जो आप लेके गए,
को सॉल्व फीलिंग्स में। एंड एक्सटर्नली अगर जो भी कार्यवाही करनी है, बॉस को रिपोर्ट करना है, कंसर्न डिपार्टमेंट को बताना है, वो हम बताएंगे जो भी करना है, विच इज लॉफुल। राइट दीदी, थैंक यू। Okay, no more questions. So we'll just do 2 minutes powerful meditation. See the whole पूरा सेल्स में कैंसर है, तो सोल में पूरे अकाउंट। सो नाउ दिस सोल हैज टू गेट दिस अकाउंट, पाप को भस्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है। क्या होता है, रेडिएशन देते हैं तो वो सेल खत्म हो जाता है। सो दिस सोल, मी द सोल हैज दैट अकाउंट। तो जितना मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, गॉड की रेस इसमें डायरेक्ट आती है। Therefore, the way we practice the meditation is the rays. And these rays, spiritual rays, are burning all the negative accounts, पाप। अगर ये बर्न हो जाएंगे, फिर मेरी कोई बीमारी आएगी? जो आना था वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बर्न होगा। तो जो मुझे पता नहीं है या अभी भी पता है, उतना जब हम ये करेंगे तो वो वैसे, और वो इजी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो सिचुएशन सॉल्व होती चलेगी, बिकॉज आपका ये पूरा दग्ध होगा। ठीक है, दिस इज द मेडिटेशन। सो विल डू दिस। आई द पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा सुप्रीम वर्ल्ड में गई, और वहां द सुप्रीम सोल, विच इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लाइट, उनसे मुझे वेरी पावरफुल रेज आ रही, रेज ऑफ पीस, रेज ऑफ प्योरिटी। जैसे सूर्य की किरणें आ रही, वो सारी रेज मेरे में आ रही, मैं आत्मा प्योर बन रही। और मेरे सारे ओल्ड अकाउंट्स पाप दग्ध हो रहे। परमात्मा की लेजर रेज मुझे प्योर कर रही। इसी फीलिंग से अब मैं सोल वापस इस शरीर में आ जाती हूँ। एंड अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, जब भी टाइम मिले, I'll just do this beautiful and powerful meditation. I'll always be giving life, and I forgive everybody, whoever has caused or whoever the reason of sorrow in my life. I forgive them. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you for the meditation and such a powerful session. And thank you everybody else for joining. So we will meet the next week with a new topic. Thank you. Om Shanti and have a nice day.